اور عید کے پہلے روز قربانی کے بعد چٹپٹے کھانوں سے مہمانوں کی توازو. بچہ پارٹی نے شام کو تفریحی مقامات کا رخ کر لیا. رات کو گھر گھر ڈنر کے لیے باربیکیو کی تیاری. خوشیوں، محبتوں اور ایثار سے بھرا تہوار. اب مل بیٹھیں گے فیملی اور دوست یار. سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور قربانی کے گوشت کی مستحقین میں تقسیم کے بعد اب ہے پارٹی ٹائم. گھر گھر لذیذ اور چٹپٹے پکوانوں کے دور. دعوتوں کا اہتمام. لنچ میں بریانی، قورمہ، مٹن کڑھائی، بیف پلاؤ اور شامی کبابوں سے مہمانوں کی توازو. ڈنر کے لیے اب ہے باربیکیو کی تیاری. محفلیں سجیں گی، رنگ جمے گا. سما بڑی عید کی خوشیوں میں شریک. اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات. صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پشاور میں عید کی نماز پڑھی. اسلام آباد میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا. لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ اور بادشاہی مسجد میں ہزاروں شہریوں نے نماز عید ادا کی. وطن عزیز کے لیے خصوصی دعاؤں کے بعد گلے لگ کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عید سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ. سپہ سالار کا دورہ یوب. جوانوں سے عید ملے. بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا. کہا کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا. پاکستانی افواج اور قوم کا عزم غیر متزلزل. دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رکھنے کا اعلان. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا عید الاضحیٰ پر اتحاد اور ایثار پر زور. کہا نفرت اور تقسیم کے بجائے محبت، برداشت اور مکالمے کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت. وزیر اعظم کا صدر مملکت آصف علی زرداری، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کو فون عید کی مبارکباد دی. شہباز شریف کا سروسز چیف کو بھی ٹیلی فون. فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو بھی عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد. پارٹی صدر نواز شریف کو عید کی مبارکباد دی. ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو. مہنگائی کم کرنے کی کوششیں کریں. بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. نواز شریف کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی تمام پاکستانیوں کو عید کی دلی مبارکباد. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی جانب سے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. کہا عید قرباں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک ہے. قربانی کے ذریعے رضائے الہی کا حصول ہر مسلمان کا نصب العین ہے. عوام اس موقع پر مستقین کو یاد رکھیں. عبدالعلیم خان کا پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت. کہا وطن عزیز کی سلامتی اور خوشحالی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. مشرق وسطی سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز کے عید کے روح پرور اجتماعات. امت مسلمہ کی خوشحالی، استحکام اور خطے میں جاری تنازعات کے خاتمے کی دعائیں. قبلہ اول میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید کی نماز پڑھی. UAE، قطر، ترکیہ سمیت دیگر مسلم ممالک میں بڑے اجتماعات. امریکہ اور یورپ میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. غزہ کے عوام نے کھنڈر بنی عمارتوں کے درمیان عید کی نماز ادا کی. شہداء کی قبروں پر حاضری دی. ترمیم کا مسودہ کسی کا اس کا ڈرافٹ کوئی بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ سے شیئر نہیں ہوا. نہ کوئی ترمیم ہے سامنے آئی، نہ کسی صوبوں کی بات ہوئی ہے، نہ کسی شہر کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، نہ NFC کو ریوائز کرنے کی بات. 28ویں ترمیم دیکھی، نہ کسی نے اس پر ہم سے کچھ پوچھا. کوئی ترمیم ہے، نہ شہر کو الگ کرنے کی کوئی بات ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سہون میں گفتگو. کہا تنخواہیں بڑھانے کے حوالے سے وفاق سے مل کر فیصلہ کریں گے. وسائل کی کمی سے ڈیولپمنٹ سکیمز خطرے میں پڑ گئیں. کوشش ہے کہ بجٹ میں غریب پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے.
अमनो अमान के मसाइल दीगर जगहों पर भी हैं, हदफ सिर्फ सिंध को बनाया जाता है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी सिस्टम में दस्तयाब होगा तो आएगा। लाहौर में पानी का चैलेंज ज्यादा बड़ा नहीं, बल्दियाती इदारों को बाख्तियार करने की बात वो जमातें कर रही हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ती। शर्जील मेमन ने गैस और बिजली दोनों विफाक के इशूज करार दे दिए। मेयर कराची कहते हैं शहर में पानी का बहरान नहीं, हकीकत में टैंकर माफिया का राज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की तनकीद, पीपल्स पार्टी और MQM को फार्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा पैसे देकर वजीर बनने वाले क्या मसाइल हल करेंगे। हाफिज सईमुर रहमान का मुल्कीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी, आलाइशें ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार। गुलशन इकबाल में सड़कों और घरों के सामने आलाइशें जमा, न्यू MA जिना रोड पर आलाइशों के ढेर लग गए। सड़क और गली मोहल्लों में पड़ी आलाइशों से शहरी परेशान। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा गली मोहल्लों की सफाई चेक करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बड़ी ईद पर लाहौर, सियालकोट, डेरा गाजी खान, झांग और लोधरा में तंग गलियों में जानवरों की बाकियात और आलाइशों की लाइव मॉनिटरिंग। सफाई के बाद चूने का छिड़काव। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। बुनेर में ईद की नमाज के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा ऐसी मुलाकातें और फोन पर गुफ्तगू होती रहती है, ये हसास मामला है, कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। बैरिस्टर गौहर की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। हमारे खर्चों पे PhD कराया गया, सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज्यादा खतरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक का दौरा, धमाके की जगह का मुआयना किया। कहा दहशतगर्द हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, हमारे खर्चे पर PhD करने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बलोचिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। सूबे में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुताद्दिद ऑपरेशंस किए गए, मुताद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान, दरखास्त है इंडिया के आलाकार ना बने। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा हुकूमत बजट में आम आदमी की आसानियों के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, ऐसी तजावीज़ ज़ेर गौर है जिससे अवाम को रिलीफ दिया जाए। सेनेटर आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा कर देंगे, गुर्बत और महंगाई के बादल भी छट जाएंगे। कराची बड़ी तबाही से बच गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सुपर हाईवे से कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। सिटी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान हसास इदारों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। नए बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स के लिए रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार। तनख्वाहों में इजाफा IMF और विफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत। मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे के अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। जम्मू कश्मीर तनाज़े, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन समेत अहम उमूर पर बातचीत। अंटोनियो गुतेरेस ने अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की खिदमत को सराहा। इसाक डार से जमहूरियत चेक के नायब वज़ीर आज़म की भी मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। पुर्तगाली वज़ीर आज़म भी मिले, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को भी सराहा। ईरान तनाज़ा, अमरीकी काबीना का इजलास, व्हाइट हाउस में तलब, ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान से वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दामात पर गौर कर रही है। अमरीकी सदर की एक बार फिर मीडिया पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN और वॉल स्ट्रीट जर्नल को आड़े हाथों ले लिया। कहा ईरान हथियार डाल भी दे तब भी मीडिया उसे ही फातेह करार देगा।
जंग में नाकामी के बाद दुश्मन का जोर मुआशी हालात बिगाड़ने पर है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा आज असल मार्का इक़्तिसादी जंग के मैदान में है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती ने कहा मुआहिदे की जमानत सिर्फ कागज नहीं, आबने हरमज असल जामिन है। ईरान पासदारान इनकलाब कमांडर मोहम्मद अकबरजादा कहते हैं अमेरिका के साथ लड़ाई का इम्कान कम, अगर दोबारा हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जुनूबी इलाकों को दुश्मन का कब्रिस्तान बना देंगे। इसराइल की गजा पर बमबारी, हमास के अस्करी विंग के सरबराह शहीद, नमाज जनाजा अदा। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दावा को मई में अल किसाम ब्रिगेड का कमांडर मुकर्रर किया गया था। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर भी हमले, 100 से जायद मकामात पर बमबारी, 24 घंटों में 33 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। भारत में ईद पर भी मुसलमानों पर जिंदगी तंग, कुर्बानी करना और जानवर रखना मुश्किल हो गया। मुंबई में सोसाइटी में बकरे रखने पर तनाज़ा, हिंदू इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, सियासी नुमाइंदे भी कूद पड़े, सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की सफाकियत, नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फौज ने तारीखी जामे मस्जिद श्रीनगर और ईदगाह को ताले लगा दिए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस मोहम्मद उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया। यूरोप में गर्मी की लहर बरकरार, बरतानिया में सूरज का पारा हाई, आज दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में भी सूरज का कहर, सयाहों ने तफरीही मकामात पर डेरे जमा लिए। इंतजामिया की शहरियों को हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बांग्लादेश से शिकस्त के आफ्टर शॉक्स, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रैंकिंग में तनज़ली, साउथ शकील 10 दर्जा तनज़ली का शिकार, 16वें से 26वें नंबर पर चले गए। शाहीन शाह अफरीदी 24वें से 26वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की रैंकिंग में 1 दर्जा की बेहतरी, 23वें से 22वीं पोजीशन पर आ गए। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। मुशफिकुर रहीम की रैंकिंग में 10 दर्जा बेहतरी, 26वें से 16वें नंबर पर आ गए। तीजुल इस्लाम और नाहिद राना का नंबर भी मजीद बेहतर हो गया।